بسم الله الرحمن الرحيم. विश्राम. सावधान. एक कदम आगे की ओर चल. एक कदम पीछे की ओर चल. विश्राम. सावधान. एक सारा झंडे को सलामी देंगे. सलामी दे. जैसे थे गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा को खूब तरक्की अता फरमाए. हम इस्तकबाल करते हैं सादिक रज़वी साहब का और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो एक ऐसा मैसेज दें कि अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत के फूल खिलाए. मोहम्मद सादिक. वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम. मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की चाहने वालियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान है कि उसने हमें और आपको आज का ये खूबसूरत और मुबारक दिन नसीब फरमाया. और ये अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है कि आज हम और आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ को गुजार रहे हैं. चूँकि बारिश भी हो रही है और मदरसे के बच्चे मौजूद हैं,
تو زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، بس تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا، صرف یہ سمجھاتے ہوئے کہ ہم اور آپ ہندوستانی مسلمان ہیں، اور بحیثیت ہندوستانی مسلمان ہمیں اور آپ کو اپنے وطن سے کتنی محبت کرنی چاہیے اور اس ملک سے ہمارا رشتہ کتنا پرانا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہندوستانی مسلمانوں پر آج جو طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا الزام یہ بھی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان رہتا یہاں ہے، کھاتا پیتا یہاں ہے، لیکن وہ اس ملک سے محبت نہیں کرتا بلکہ اپنے پڑوسی ملک سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں صرف ان بچوں کے سامنے نہیں بلکہ ہزاروں کے مجمع میں منبر پر کھڑے ہو کر کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ہندوستانی مسلمانوں پر ایک الزام ہے، ایک بہتان ہے، اس کی اپنی کوئی سچائی اور اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی بے پڑھا لکھا مسلمان، اگر کوئی کم علم مسلمان پڑوسی ملک کے کرکٹ کے میچ جیت جانے پر پٹاخے بازی کرتا ہے تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کا باغی یا غدار ہو گیا ہے۔ ہاں، ہم اس چیز کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس زمین کے ساتھ ہے تو ہمیں اپنے ملک کی کامیابی پر خوشی منانا چاہیے اور اپنے ملک کی ہار پر غم کرنا چاہیے۔ ہم اگر اپنے ملک کے ہارنے پر اور پڑوسی ملک کے جیتنے پر خوشیاں مناتے ہیں تو یہ ہماری کم عقلی کا نتیجہ ہے، یہ ہماری جہالت کا نتیجہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بحیثیت ہندوستانی مسلمان یا بحیثیت ہندوستانی ہمارا تمام رشتہ ناتا، ہمارے تمام معاملات جو ہیں اس ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک کی کامیابی ہماری کامیابی ہے، ہمارے ملک کی ترقی ہماری ترقی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم مکمل طور پر اپنے ملک سے محبت کریں اور اپنے ملک کو کامیابی کی طرف بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس ملک میں مسلمان نہ کرایہ دار ہے اور نہ ریفیوجی، بلکہ جیسے تمام مذاہب کے ماننے والوں کا اس ملک پر حق ہے، مسلمانوں کا حق اس سے 1% بھی کم نہیں ہے، بلکہ برابری کا حق تمہارا بھی ہے اور برابری کا حق ہمارا بھی ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس سے میری آبرو ہے، اس سے تیری آبرو، اس پہ دل قربان ہے، اس پہ جاں قربان ہے، یہ تیرا ہندوستان ہے، یہ میرا ہندوستان ہے۔ تو ہم کوئی کرایہ دار نہیں ہیں کہ ایگریمنٹ ختم ہوا تو چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ کئی بار نکالنے کی کوششیں کی گئی، دھمکیاں دی گئی، ڈرایا گیا، مارا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ میں کہتا ہوں جنہیں جانا تھا پارٹیشن کے وقت وہ چلے گئے، ہمیں یہ ملک پیارا تھا اس لیے نہ ہم کل گئے تھے اور نہ کل جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمین وہ زمین ہے جس میں ہمارے باپ دادا کی ہڈیاں ملی ہوئی ہیں۔ اپنے باپ دادا کو چھوڑ کر ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ یہاں ان کی قبریں موجود ہیں، یہاں ان کی نشانیاں موجود ہیں، جس زمین پر وہ پیدا ہوئے، جس راستے پر وہ چلے، وہ گلی کوچے، وہ کھیت کھلیان، وہ گاؤں دیہات، وہ آب و ہوا، وہ سب یہی موجود ہے۔ تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر بھلا کہاں جا سکتے ہیں؟ اور میں ہزار بار کہتا ہوں، ہم مسلمانوں کو جتنا مسلمان ہونے پر فخر ہے اتنا ہندوستانی ہونے پر بھی فخر ہے۔ ہم کبھی اس بات کی شکایت نہیں کرتے کہ کاش ہم امریکہ میں پیدا ہوئے ہوتے، ہم کبھی اس بات کا شکوہ نہیں کرتے کہ کاش ہم لندن میں پیدا ہوئے ہوتے، کاش ہم ماریشس میں پیدا ہوئے ہوتے، کاش ہم سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوئے ہوتے۔ نہیں، ہمیں فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہندوستان کی سرزمین پر پیدا فرمایا۔ اور جانتے کیوں؟ میں اس کو بھی واضح کر دوں، جو مسلمان موجود ہے وہ بھی سنیں، جو غیر مسلم موجود ہے وہ بھی سنیں۔ اس پر مجھ پر کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ زمین ہم مسلمانوں کو اس لیے پیاری ہے کیونکہ یہ وہ ملک ہے جو اللہ کو بھی پیارا ہے اور رسول اللہ کو بھی پیارا ہے۔ اور میں اس کو ثابت کر کے بتاتا ہوں،
आदम अलैहिस्सलाम जो तमाम इंसानों के बाप है, सिर्फ मुसलमानों के बाप नहीं, तमाम इंसानों के बाप। आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से अल्लाह ने जमीन पर उतारा तो किसी और धरती पर नहीं उतारा, बल्कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह ने भेजा है आदम अलैहिस्सलाम को। हिंदुस्तान जो आज इतना छोटा है उस वक्त इतना छोटा नहीं था। श्रीलंका भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में था, नेपाल भी हिंदुस्तान में था। मैं उस वक्त के हिंदुस्तान की बात करता हूँ जब छोटे छोटे टुकड़ों में ये तब्दील नहीं हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन की तरफ चले, अल्लाह ने उनको सरनदीप की पहाड़ियों पर उतारा था, और सरनदीप की पहाड़ियां आज श्रीलंका के हिस्से में हैं, लेकिन उस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करती थी। तो आदम अलैहिस्सलाम के कदम सबसे पहले पड़े हैं तो इसी मुल्क में पड़े। तो अब बताइए, इससे ये बात साबित हुई कि नहीं अल्लाह को ये जमीन पसंद है। अगर अल्लाह को ये जमीन पसंद ना होती तो अल्लाह अपने नबी को कहीं और भेज देता। अब इसी तरह से ये भी सुन ले, जब आदम अलैहिस्सलाम आए तो आपके पुश्त अनवर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमक रहा था। आपके जिस्म के अंदर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमक रहा था। तो आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए तो ये बात भी साबित हो गई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जन्नत से जमीन की तरफ चला है तो मक्के मदीने में बाद में चमका है, हिंद की सरजमीन पर पहले चमका है। और जब आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले यहाँ आए, जो अल्लाह के पहले नबी, तो अल्लाह का पैगाम लेकर जिब्राइल भी सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सजदे किए तो आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सजदा भी सरनदीप की पहाड़ियों पर यानी हिंदुस्तान में किया है। अजान की आवाज गूंजी है, अल्लाह का जिक्र हुआ है, अल्लाह की इबादत हुई है, तो हिंद की सरजमीन पर हुई है। हम इसीलिए कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुल्क हमें इसलिए प्यारा है क्योंकि ये मुल्क अल्लाह को प्यारा है, और अल्लाह को प्यारा ना होता अल्लाह अपने नबी आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ ना भेजता। आदम अलैहिस्सलाम की नस्लें चली, और आप जानते हैं कि अयोध्या में एक बड़ी लंबी सी कब्र जिसके बारे में मशहूर है कि ये शीश अलैहिस्सलाम की मज़ार था, और बाज लोग कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की मज़ार था। तो लोगों ने सिर्फ उस कब्र के हवाले से कहा, लेकिन मैंने तारीख के जब औरात पलट कर देखे तो पता चला कि सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन पर नूह अलैहिस्सलाम या शीश अलैहिस्सलाम की कब्र नहीं है, बल्कि तकरीबन 40 अंबिया की कब्रें हिंदुस्तान में मौजूद हैं। अब लोग तहकीक करके उसे तलाश न सके कि कहां कहां पर है और किस किस नबी की, लेकिन लोगों ने एक मिसाल के तौर पर लिखा है कि 40 अंबिया का सबूत हिंदुस्तान में मिलता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैदीवानों, ये जमीन इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद। जानते कैसे? हदीस मुबारका में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग होते तो आप दाईं तरफ घूम कर दुआ करते। जब नमाज का वक्त होता तो रुख किबले की तरफ होता, खाने काबा की तरफ, दुआ के लिए दाहिनी तरफ। आप गौर करें तो आज भी हमारी मस्जिदों के इमाम दुआ के लिए दाहिनी तरफ घूम जाते। तो सहाबा इकराम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ के लिए इस तरफ क्यों घूमते? तो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस तरफ हिंद है और हिंद से मुझे वफा की खुशबू आया करती है। यानी हिंद में बागी नहीं होंगे, हिंद में गद्दार नहीं होंगे, हिंद में मुशरिक नहीं होंगे, हिंद में बिदती नहीं होंगे। उन पर फतवे तो अगरचे लगाएंगे लोग, लेकिन सुन लो, हिंद की सरजमीन पर आज अगरचे कोई गुंबद नहीं है, मीनार नहीं है, अजान नहीं है, नमाज पढ़ने वाला नहीं है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है। आज हिंद की सरजमीन पर अगरचे कोई मेरा नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन नबी की निगाहें गैबदा देख रही थी, इसी हिंद की सरजमीन पर मेरे वफादार पैदा होंगे। मैं अपने एक नवासे को मोइनुद्दीन अजमेरी की शक्ल में भेजूंगा और मेरा मोइनुद्दीन जाएगा और पूरी हिंद की धरती को मेरे वफादारों के रंग में रंग देगा। तो आका फरमाते इस तरफ हिंद है और हिंद से मुझे वफा की खुशबू आता। और एक दूसरी जगह पर आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इस तरफ हिंद है और हिंद से मुझे ठंडी हवा के झोंके आते हैं। इसी हदीस मुबारका को सामने रखकर शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मीरे अरब को आई
ठंडी हवा जहां से मेरे अरब को आई, ठंडी हवा जहां से मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो जिस जमीन से मेरे आका को ठंडी हवा के झोंके जाते हो, क्या बताओ हम उस जमीन से बगावत कर सकते हैं? उस जमीन से हम गद्दारी कर सकते हैं? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों में एक और बात अलल ऐलान कहना चाहूंगा। हम मुसलमान देशभक्त नहीं है, हम देश प्रेमी हैं। भक्त होना और है, प्रेमी होना और है। हम अपने वतन से प्यार करते हैं लेकिन इसकी पूजा नहीं करते हैं। हम अपने वतन के लिए जान देने को तैयार हैं लेकिन सजदा करने को तैयार नहीं हैं। उसकी वजह कि तुम्हारे मजहब ने तुम्हें आजाद कर रखा है। तुम जिसको चाहो माबूद समझो, तुम जिसके चाहो सजदे करो, तुम जिसको चाहो खुदा बना लो, लेकिन हमारे मजहब ने पाबंदी लगा दिया है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं। मोहब्बत क्यों न करे, लेकिन शरीयत ने हमें सजदा करने की इजाजत नहीं दी है। अरे हम सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद अपने नबी से प्यार करते हैं लेकिन नबी का सजदा करने की भी खुद नबी ने इजाजत नहीं दिया है। हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं लेकिन हम अपनी माँ का सजदा नहीं करते। हम अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन हम अपने बाप का सजदा नहीं करते। और किसी का सजदा करना तो दरकिनार, मेरी शरीयत ने यह पाबंदी लगा दिया कि तुम किसी की ताजीम में इतना भी ना झुको कि रुकू की पोजीशन में पहुंच जाओ। तो जब इतना झुकने से मना किया गया है तो सजदा करने की कहाँ इजाजत होगी? इसलिए हम देशभक्त नहीं लेकिन देश प्रेमी, और देश प्रेम का सर्टिफिकेट हमें आज किसी से लेने की जरूरत नहीं है। हमारे बुजुर्गों की तारीख उठाकर देख लो, उन्होंने सिर्फ देश प्रेम के दावे नहीं किए बल्कि अपने मुल्क के लिए अपनी गर्दनों को कटाकर काला पानी की सजा लेकर तोपों के सामने बांध कर उन्हें उड़ाया गया, उन्हें फांसी पर लटकाया गया, उन्हें कश्मीर से कन्याकुमारी तक पेड़ों में लटका दिया गया। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादा ने अपनी जानें कुर्बान करके बता दिया है हम जबानी जमा खर्च करने वाले देशभक्त नहीं हैं बल्कि हम वक्त आए अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने को तैयार। और एक तारीख और आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर यकीन ना हो तो तहकीक कर लेना। ये ना समझना कि मुसलमान है तो इस्लाम की हिमायत में बात करता है। जाओ जाकर हक को समझने और पहचानने की कोशिश करो। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुगलों ने तकरीबन 550 साल हुकूमत की है। कितने साल तक? आप जवाब दें। ये बच्चों को समझा रहा हूं, बच्चे याद रखें। बाज लोगों ने 800 साल लिखा, बाज लोगों ने 1000 साल लिखा, लेकिन मैं मिनिमम पकड़ता हूं 550 ईयर्स, 550 साल। 550 साल बताइए कोई कम मुद्दत होती है? कोई कम वक्त होता है? 550 साल बड़ा तवील अरसा होता है, बड़ा लंबा चौड़ा वक्त होता है। मैं अगर आपसे पूछूं आपको आपके वालिद का नाम मालूम है? आप जवाब देंगे हाँ मेरा अब्बा का नाम ये है। दादा का नाम पता है? आप दादा का नाम भी बता देंगे मुमकिन है। मैं कहूं दादा के अब्बा का नाम पता है, उनके अब्बा का नाम पता है तो नहीं बता सके। 100 साल की बात, आपके दादा के वालिद साहब को मरे 200 साल नहीं हुए होंगे, 250-300 साल नहीं हुए होंगे, लेकिन 100 साल में आदमी सब भूल जाता। 100 साल का अरसा कितना तवील होता। 550 साल की मुद्दत जरा अंदाजा लगाएं। आज जो मुसलमानों पर यह इल्जाम है कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला, तलवार की जोर पर फैला, इस्लाम जोर जबरदस्ती फैला है, जिहाद की बुनियाद फैला है, जबरन फैलाया गया है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा हिंदुस्तान में मुगलों ने तकरीबन 550 साल हुकूमत किया है। अरे 550 साल में अगर तलवार के जोर पर इस्लाम फैलाना होता तो आज हिंदुस्तान में कोई और मजहब का मानने वाला ना होता, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको सब कलमा पढ़ने वाले मिल जाते। और जानते हो ये उस दौर की बात है, हुकूमत मुगलों की थी, कोई पार्लियामेंट नहीं था,
تھا, کوئی الیکشن نہیں تھا, کوئی سی ایم پی ایم نہیں تھا, کوئی قانون دنیا کا نہیں تھا, بلکہ بادشاہ جو کہہ دیتا تھا وہی قانون ہوتا تھا. اسے جو مانتا اس کو جان کی امان دی جاتی تھی, اور جو نہ مانتا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا. اگر مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلایا ہوتا تو اعلان کر دیتے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ, اعلان کر دیتے دوسرے مغل بادشاہ کہ 1 دن کی مہلت ہے, 1 ہفتے کی مہلت ہے, 10 دن کی مہلت ہے, یا تو تمام مذہب والے کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائیں, یا تو ہندوستان کو خالی کر کے باہر نکل جائیں, ورنہ سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. اب میں پوچھتا ہوں کون سا اپوزیشن تھا, کون سا این جی او تھا, کون ان کی مخالفت کرنے والا تھا, کون سا مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا تھا, کون بادشاہ وقت کے خلاف آواز اٹھانے والا اور دھرنا دینے والا تھا. اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیلانا ہوتا تو مغل بادشاہوں نے نقشہ بدل دیا ہوتا, لیکن جانتے ہو کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ اسلام کو تلوار کے زور پر بادشاہوں نے پھیلایا ہے. ہندوستان میں مغل راجاؤں مہاراجاؤں نے پھیلایا ہے, نہیں بلکہ 550 سال کے بعد جب مغلوں کا تختہ پلٹا ہے اور انگریز قابض ہوا ہے تو جانتے ہیں ہندوستان میں مسلمان کتنے تھے. اگر تلوار کے زور پر پھیلا ہوتا تو پورے ہندوستان میں صرف مسلمان ہوتے, لیکن جب انگریز قابض ہوا تو ہندوستان میں صرف 20% مسلم تھے, 20% مسلمان. اپنی بات ثابت کر کے بتاؤ. جو تم کہتے تلوار کے زور پر, تلوار کے زور پر, ارے ہم نے نہیں, عیسائیوں نے لکھا ہے, عیسائی تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے, صوفیہ, پیروں, فقیروں, درویشوں کی محنت کی بنیاد پھیلا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کیوں. اس وقت اونچ نیچ, ذات پات, بھید بھاؤ بہت زیادہ تھا. جو براہمن تھے, جو چھتری تھے, جو اونچی ذات والے تھے, ان کو کسی بھی مندر میں آنے جانے کی اجازت تھی, لیکن جو نچلی ذات کے لوگ ہوتے تھے, جو دلت سماج سے تعلق رکھتے تھے, ان کو ساری مندروں میں جانے آنے کی اجازت نہیں تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی کا سجدہ کریں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی کو اپنا معبودوں کی طرف کر لیا, فقیروں کی طرف کر لیا. اور ہندوستان میں جو فقیر آئے تھے, جو درویش اور صوفی آئے تھے, ان کا حال یہ تھا, ان کے پاس جب کوئی آتا تھا وہ اس کا مذہب نہیں دیکھتے تھے, اس کا حسب نسب نہیں دیکھتے تھے, اس کی رنگ و نسل نہیں دیکھتے تھے, بلکہ آنے والا بھوکا ہوتا تھا, وہ اپنے حصے کا کھانا اسے کھلا دیتے تھے. آنے والا برہنہ ہوتا تھا, اپنی چادر اتار کر اس کے جسم پر ڈال دیتے تھے. آنے والا اپنی مصیبتوں پریشانیوں کی شکایت کرتا تھا, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اس اخلاق کو دیکھ کر, ان کے اس کردار کو دیکھ کر, ان کے اس معاملات کو دیکھ کر دھیرے دھیرے لوگ ان کی طرف متاثر ہوتے گئے, ان کے ساتھ ہوتے گئے. اور نتیجہ یہ ہوا, تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے, ہندوستان کی سرزمین پر اے مسلمانوں صرف اور صرف میرے غریب نواز نے تقریباً 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا. کوئی آدھار کارڈ کا لالچ نہیں دیا تھا, کوئی پاسپورٹ بنوانے کا لالچ نہیں دیا تھا, کوئی نوکریاں دلوانے کا لالچ نہیں دیا تھا, کوئی مکان خرید کر دینے کا لالچ نہیں دیا تھا. ارے میں کہتا ہوں 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا غریب نواز نے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی بستی کو آگ لگائی گئی, کسی گھر کو اجاڑا گیا, کسی بیٹی کو بیوہ بنایا گیا, کسی ماں باپ کی گود کو اجاڑا گیا ہو, کسی بچے کو یتیم کیا گیا ہو. ارے غریب نواز نے کسی کو تھپڑ مارنا تو درکنار اف بھی نہیں کہا. اور نتیجہ یہ ہوا, آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر دھیرے دھیرے لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے لگ گئے. اور یہ سوامی وویکانند نے بھی اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ یہ الزام ہے بہت بڑا مسلمانوں پر کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے. اور عیسائی تاریخ نگاروں نے بھی لکھا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں, بہرحال اپنی تاریخ کو سمجھے. 550 سال مغلوں کی حکومت, دنگے نہیں ہوئے پورے ہندوستان میں, ایک بھی دنگے فساد نہیں ہوئے. ہندوستان میں دنگے فساد کی بنیاد انگریزوں نے رکھا. جانتے ہو جب مغل بادشاہوں کا تختہ پلٹا, انگریز قابض ہوا, اس وقت ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. آج وہ سونے کی چڑیا نہیں رہ گیا. مغل بادشاہ ہندوستان آئے تو یہاں سے لے کر کچھ نہیں گئے, بلکہ اس ملک کو دے کر گئے. انگریزوں نے
125 साल 150 साल हुकूमत क्या दिया है इस मुल्क को अपनी उंगलियों पर गिन सकते हो। और मुगल बादशाहों ने क्या कुछ दिया है इस मुल्क को, उसको देखो आप। अंग्रेज क्या लेकर गया उसको देखो, मुगल बादशाह क्या लेकर गए उसको देखो। अरे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूं, लॉर्ड माउंटबेटन की कब्र हिंदुस्तान में है कि कहां है बताओ। मलका विक्टोरिया जिसने हुकूमत की हिंदुस्तान में, उसकी कब्र कहां है बताओ। अंग्रेज आया था व्यापारी बनकर, काबिज हो गया, हाकिम बनकर बैठ गया और हिंदुस्तान को लूट कर ले गया। और जानते हो कैसा लूटा, इतना लुटेरा था कि वो गांधी जी के चश्मे भी उठा ले गया, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तलवार भी ले गया, शाहजहां ने ताजमहल में जो हीरे मोतियां जड़वाए थे उसको भी निकलवा कर साथ ले गया, हिंदुस्तान का सबसे कीमती कोहिनूर की हीरा भी अपने साथ ले गया। अंग्रेज आया तो लूट कर हिंदुस्तान को चला गया। और मुगल बादशाहों की कब्रें, वो चाहे हुमायूं हो, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो औरंगजेब हो, आप देखें उन सब की कब्र हिंदुस्तान में मौजूद है। उसकी वजह कि वो जाने नहीं आए थे, इस मुल्क में बसने आए थे, इस मुल्क से मोहब्बत करने आए थे, वो लेने नहीं आए थे, वो देने आए थे। आप कहेंगे क्या दिया उन्होंने, तो अपनी आंख खोलो और देखो, आपको पता चलेगा। हिंद की सरजमीन पर जो पूरी दुनिया के सामने 7 वंडर्स के नाम पर ताजमहल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, आखिर वो ताजमहल किसने बनाया था? अरे मुसलमानों किसी और ने नहीं बनाया था, एक कलमा पढ़ने वाले मुगल बादशाह ने बनाया था। और ये भी कह दूं, इस्लाम के लिए नहीं बनाया था, अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए बनाया था। इसी तरह से हमारा प्राइम मिनिस्टर आज भी 70 साल आजादी के हो गए, आज भी जिस लाल किले पर चढ़कर झंडा लहराता है उसे याद नहीं कि वो लाल किला भी किसी और ने नहीं, कलमा पढ़ने वाले ने बनाया था। कुतुब मीनार किसने बनाया था? चार मीनार किसने बनाया था? हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये मॉन्यूमेंट जो मौजूद है, ये जो तारीखी मकामात मौजूद है, ये किसने बनाया था? फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। और मैं कहूंगा, धरती माता कहते हो, कभी अपनी भारत माता से पूछ कर देखो तो ये भारत माता खुद पुकार पुकार कर कहेगी, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है। हाँ, यहाँ लाल किला ताज के बानी हम है। हम पर उंगलियां न उठाओ, हम पर पत्थर न मारो, हम पर इल्जाम न लगाओ। और अगर लगाते हो तो याद रखना, तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, फिर दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये मुल्क हमारा है और मैं बार बार कहता हूं, ये वो जमीन है जो अल्लाह को भी प्यारी है और रसूलुल्लाह को भी प्यारी है। और ये भी सुन लें, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको एक से एक डिशेस मिल जाएंगी, आपको खूबसूरत देखने के मकामात मिल जाएंगे, आपको पिज्जा मिल जाएगा, पास्ता मिल जाएगा, बर्गर मिल जाएगा, नूडल मिल जाएगा। आप दुनिया में कहीं जाओ, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन गरीब नवाज का गुंबद कहीं और नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो हिंद की सरजमीन पर मिलेगा। और इसीलिए हम कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी हो, हकीकत में हिंद के राजा तो मेरे ख्वाजा हैं। तुम्हारा मामला तो इलेक्शन वाला है, तो कोई किसी मिनिस्टर के हवाले से, गवर्नर के हवाले से, पीएम के हवाले से, सीएम के हवाले से बकवास करे, करने दो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अपने मुल्क के हवाले से कोई कहे तो हमें बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के खिलाफ मंसूबा कोई करे, हमारे मुल्क के खिलाफ प्लान कोई करे, हमारे मुल्क में दंगे फसाद की कोई बात करे, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की कोई बात करे, हमारे मुल्क में आतंकवाद फैलाने की कोई बात करे, हम हरगिज़ उसकी हिमायत नहीं करते हैं। और मैं ये भी कहूंगा, सुन ले लोग, वाज़े तौर पर इस्लाम का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं है और मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। ये तुमने लेबल लगा दिया है, तुमने लेबल लगा दिया, ये तुमने हमें आतंकवादी करार दे दिया, ये तुम्हारी अपनी सोच और फिक्र है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम्हारे कह देने से हम आतंकवादी नहीं बन जाते। तुम हमें चाहे जो कहो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पहलवानों, हमारा ज़मीर मरा नहीं है, हमारी गैरत जिंदा है। और तुम हमें चाहे जो कहो, हमारा दिल ये गवाही देता है हम अपने मुल्क के गद्दार नहीं हैं, हम अपने मुल्क के वफादार हैं। क्यों ना हो, साबिर कलियरी यहीं आराम कर रहे हैं, मखदूम के चौचा यहीं आराम कर रहे हैं, वारिसे पाक यहीं आराम कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका के पहलवानों, अभी चंद रोज पहले ख्वाजा बंदा नवाज का उर्से पाक गुजरा है। आप इन बुजुर्गों की तारीख देखें तो पता चलेगा, कोई अफगानिस्तान से आया था, कोई अरब की सरजमीन से आया था, कोई संजर से आया था, कोई बगदाद से आया था। हिंदुस्तान ये क्यों आए थे? अगर ये जमीन प्यारी ना होती तो ये ना आते। तो ये जमीन वो जमीन है कि जहां औलिया इकराम आराम कर रहे हैं, और अल्लाह ने अपने वलियों की आराम का इसे इसलिए बनाया है क्योंकि ये जमीन अल्लाह को प्यारी है। तो हमारा रिश्ता बहुत पुराना है इस मुल्क से। हम अभी 2, 4, 5 साल पहले नहीं आए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पहलवानों, बहरहाल मैंने कहा था मुख्तसर बातें अर्ज करूंगा, लेकिन बारिश रुक गई तो बात थोड़ी आगे बढ़ गई। अल्लाह अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फैल हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यही मैसेज, यही पैगाम, नफरत नहीं, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, ऊंच नीच नहीं, मुसलमान एकता, अखंडता, समानता की बात करता है। मेरे प्यारे आका के पहलवानों, यही मैसेज आज के इस प्रोग्राम से आप लेकर जाएं, और ये बच्चे बड़े हों तो इसी पैगाम को दुनिया भर में स्प्रेड करें, अच्छी तरह से इस्लाम को रिप्रेजेंट करें, अपने अखलाक को, अपने किरदार को संवारने की कोशिश करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें, अपने मुल्क की तरक्की के लिए जद्दोजहद करें, कोशिशें करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।